1977, and our first president was Dr. Vinod Khurana, who is a renowned doctor at Bara Hindu Rao Hospital as dermatologist. And then it was followed by Ajay Mahajan for 1982 batch, Dinesh Chopra 1977 batch, Pankaj Malik 1989 batch, and myself 1981 batch. On this platform, we used to try to create global family of Hansarians by adding all the ex-students and ex-teachers of the school. We have United States, UK, Singapore, and Australia chapters also. Our one of the aim is to contribute for the development of school, like we have made clay tennis court in school playground. We provided RO systems, we provided electronic display board, and we developed the Vanasthali for school. Moreover, to encourage the meritorious students, we have distributed certificates, shields, and checks also. And during the first phase of this COVID-19, we have provided school with sanitizers, automatic sanitizer machines, face shields, masks, hand sanitizers, gloves, temperature sensors, and other materials which are required by the staff at the time. For school, our association has been organizing various cultural shows, conversation of students with Hansarians who have passed and achieved good places around the world in their fields, and very successful annual meets of ex-students and teachers. During this time also, we are trying our best for school Hansarians and their family. And in future, we will do more activities. Not taking much time, I am again thankful to everybody for your support and joining this event. Before I hand over the charge to Dr. Bhatia, I just request Mr. Dinesh Chopra to say a few words for Dr. Bhatia. Dinesh ji. Hi, good afternoon, everybody, and thanks for joining, as I said. And to introduce Praveen, it's my privilege and honor to introduce my friend for 47 years. And I'm sure our gurus who are on the line also will, second with me that he was like an icon, one of the intelligent boys and our head boy of our 1977 batch. And after doing the 11th from school, he went to do MBBS from Maulana Azad Medical College, and after that he did his MS and FRCS. And after he doing that, he set up Bhatia Global Hospital and Endosurgery Institute in Ambika Vihar, Delhi, where he is a medical director. And also he is the founding chairman and senior consultant of Institute of Minimal Excess Metabolic and Bariatric Surgery at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. I think it's our privilege to have you here, Praveen, and looking forward to your talk. Please, over to you. Thank you very much, Dinesh, Manmohan, and Dr. Rishi. First, I must thank Hansraj Model School Alumni Association, which was formed in 1977, and we passed out in 1977. And to start with, in this, as you are mentioning very clearly, that my message is loud and clear. Please stay positive. Not RT-PCR positive, but positive. Stay positive, stay safe, stay healthy. And I must thank my gurus who are online today also. And the lessons which I learned in Hansraj Model School, I think for last 47, 50 odd years, we have been practicing that. One small incident I would love to quote here, that when we were in class 9th, Mr. T.R. Gupta was our principal, and he started a examination system, and that is exam without invigilation. I was surprised. I was the topper throughout my career in our class, but I was surprised that how can an exam be there without invigilation?
but we were given the question papers, we were given 3 hours, and after 3 hours we have to submit the paper, full stop. But later on in my life, I realized that was the best message which Mr. T.R. Gupta, Mr. M.D. Gupta, Mr. J.C. Chaudhary, and so many teachers had given us, that the responsibility, the values lie within. It is not outside that one has to practice. And that honesty, that integrity, which was taught to us by our principal and school teachers, I think that has continued. Though I was the head boy in the school, but later on also I practiced with so much of honesty. I have been doing surgeries, as Dinesh had told, laparoscopic surgery, the bariatric surgery, the robotic surgery in Sir Gangaram Hospital as well as in Bhatia Global Hospital. But throughout my life, I have been trying my best to become a good human being. I think in this COVID era, all of us have realized that more important than any profession or anyone is being a good human being. I will quote you a small incident. Yesterday only, the patient was coming to our hospital in Bhatia Global Hospital. He was requesting, and all of us know the situation which is there in the hospitals throughout India because of this COVID. Can you imagine? As soon as the patient came in and he was admitted, then after few minutes he started throwing that you do not know who am I and how can I change the whole scenario in the hospital. So I requested him, please, we are treating human beings, we are not treating God here. If you think that you are God, you can move to any hospital on earth. So what I mean to say, today is the era that we have to become a good human being. In Corona times, all of us have been facing so many challenges, maybe economic challenges, health challenges, business challenges. But I would request you all, especially my friends and the senior friends also, please practice SMS. S is social distance, 2 गज दूरी, बहुत जरूरी. M is mask. Mask is double mask. Again, I would reiterate here, please use 2 masks rather than 1 mask. And S is sanitization, as you were mentioning. So sanitize, hand washing. I think one has to believe on preventing the infection. So for the prevention, I will come in my later talk about the vaccination, but for prevention, these 3 things are most important. That is SMS. 1. Second thing is that as all of us have been through this COVID time, lot of panic has been there. And people, even if they have slight fever or slight sore throat or loss of taste or loss of smell, they start apprehending that this will lead on to some cascade of events and later on challenges will be there. I would request you all that please do not panic. Panic is not the answer today. Answer is, for example, if you are having fever, if you are having some sore throat, you may be suffering from mild disease. First I said prevent it, but even if you are having such kind of symptoms, there is no reason of panicking. And then even if, for example, you started having some disease, you had some disease, maybe diabetes, hypertension, sleep apnea, or heart disease, then the chances of morbidity and mortality are definitely higher. So for that, you should always consult your doctor so that he or she can contribute and the timely intervention is there. So one has to make sure that we maintain our health well. For this period, and I think I requested Dinesh also, we can definitely club in English as well as Hindi so that the common people, the message goes loud and clear. मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय अगर बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर जाइए. If you cannot go outside, please go inside. Inside means that inside your health,
inside your body. अपने सेहत को ध्यान रखना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए मैं हर बारी अपने सभी कोलीग्स को, सभी पेशेंट्स को, सभी दोस्तों को, सबको यह रिक्वेस्ट करता हूं, सर जाए पर सैर ना जाए, सर जाए पर सैर ना जाए। हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। जितना अपनी सेहत का इस समय आप ध्यान रख सकते हैं, उससे क्यों रख सकते हैं, मैं इसको इस तरह तरीके से प्रेजेंट करता हूं कि आपने ये देखा कि पिछले मार्च 2020 में जब कोविड इंडिया में आया, या दिसंबर 2019 में वर्ल्ड ओवर चाइना से शुरू हुआ, तो जितनी टोटल डेथ्स हुई हैं उसमें 74% ऐसे लोग थे जो ओबीस थे, 13% ऐसे लोग थे जो डायबिटिक थे, 13% और ऐड कर लो जो हाइपरटेंसिव थे, जिनको ब्लड प्रेशर हाई था। तो अगर आपको ये ओबेसिटी है, अगर आपको ये कोमॉर्बिटीज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, सो मैनी तो उसमें चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 74% एक्स्ट्रा हो जाती है। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो 113% चांसेस हैं डेथ होने के। कहने का सिर्फ तो अगर ये सारी बीमारियां साथ में हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिलीजियसली फॉलो करो। मास्क को सिर्फ नाक और मुंह के लिए यूज करो, गर्दन पे मत यूज करो। 1 सेकेंड, 2 मास्क यूज करो, जिसकी वजह से मास्क से ये पूरा हमारा कवर हो सके, वायरस लोड कम हो सके। दूसरा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, हैंड हाइजीन मेंटेन करो, अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखो, अपनी कोमॉर्बिडीज को कम से कम रखो। अगर मान लो आपको ये इन्फेक्शन हो भी गया है, तो भी प्रोन का मतलब पेट के बल लेटें, और उसमें जितना प्राणायाम, मेरी सारी टॉक में पी चलता रहेगा, प्राणायाम, प्रोन पोजीशन कि में लेटें, सो दैट जितना लंबा सांस लेंगे, जितना लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होगी, उतना चांसेस हैं कि हमारे लंग्स अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दो, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो कम से कम लें, सो दैट अल्टीमेटली अपने लंग्स की एक्सरसाइज अच्छी हो। लंग्स को और हार्ट को मौका मत दो वायरस को अंदर आने का। और अगर मान लो सांस और ब्लड सैचुरेशन जो है आपकी अगर 94, 95, 97 मेंटेन हो रही है विदाउट ऑक्सीजनेशन, और अगर प्रोन पोजीशन में और इंप्रूव हो जाती है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। उसके लिए अगर मान लो इन्फेक्शन हो भी गया है तो घर में ही रहें और होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जाएंगे। बाकी सब लोग आपस में ये प्रिकॉशन रखें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और अगर मान लो आपको ये कोमॉर्बिडीज हैं, तो मैंने जैसे बताया डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, सो दैट ये बीमारियां जो हैं वो आगे उस कोरोना इन्फेक्शन को बढ़ाए नहीं, जो वायरल लोड है उसको बढ़े नहीं, उसकी वजह से डेफिनेटली समाधान हो सकता है। तीसरा जो इस समय इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, दिल्ली का या इंडिया का, इस समय यह सिचुएशन है कि कहीं पे भी बेड्स नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत मुश्किल हुई है। ऑक्सीजन, कैन यू इमेजिन, मैं सर्जन, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट, भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में रात दिन सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें कहां से मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस समय मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस समय जितना ज्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे उतना फायदा रहेगा। अगर इन्फेक्शन प्रिवेंटेड रहा तो जीत हमारी सबकी है। नेक्स्ट, अगर मान लो अभी पिछले दिनों में जब हमने ये वैक्सीनेशन शुरू करी थी, तो वैक्सीनेशन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई और फिर उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई, और जिनकी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज चाहे दोनों वैक्सीन थी, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन वैक्सीन, दोनों डोसेज जब कंप्लीट हो गई तो चांसेस ऑफ इंफेक्शन आप ये सोचिए 0.04% रह गया।
अगर किसी इंसान को वैक्सीनेशन नहीं मिली और उसको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस, मगर अगर आपको पहली डोज और दूसरी डोज चाहे वो कोविशील्ड की थी चाहे वो कोवैक्सीन की थी, दोनों डोसेज मिलने के बाद चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हैज बीन रिड्यूस टू 0.04%। और अगर मान लो दोनों वैक्सीन लग भी चुकी हैं, उसके बाद भी हम सब ने SMS प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी ही लेनी है। ये मत सोचिए कि हमें अगर वैक्सीन लग चुकी है तो उसके बाद ये मास्क उतर जाएगा या सोशल डिस्टेंस कम हो जाएगा या सैनिटाइजेशन की वैल्यू नहीं रहेगी। जब तक हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, जब हर्ड इम्यूनिटी कब आएगी? हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी जब हम 80% ऑफ द पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी। और उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, और स्पेशली मैंने इन पिछले कुछ महीनों में जब 60 साल से ऊपर की वैक्सीन शुरू हुई, मेरे बैच के और मेरे सीनियर्स काफी लोग भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में आए, काफी लोगों की फैमिलीज आई और सबको हमने वैक्सीनेट किया। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट नन ऑफ देम इज सफरिंग विद कोविड टुडे। वन सेकेंड थिंग इज, अगर मान लो आपने वैक्सीन लगवा भी ली और आपको कोरोना इन्फेक्शन हो भी गया, तो भी जो सीवियर फॉर्म है इन्फेक्शन की या मॉडरेट फॉर्म है इन्फेक्शन की, वो नहीं होगी, वो माइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि ये मत सोचो कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इन्फेक्शन हो सकता है, मगर अगर इन्फेक्शन भी हुआ तो वो माइल्ड फॉर्म में होगा रादर देन मॉडरेट या सीवियर फॉर्म में होगा। कुछ क्वेश्चंस मुझसे हमेशा पूछे जाते हैं, सर हमारे यहाँ पे तो कोविशील्ड अवेलेबल है, वो तो अच्छी नहीं है, कोवैक्सीन अच्छी है। मैं ये दोनों को बड़े सिंपल शब्दों में ये प्रेजेंट करना चाहता हूं। कोविशील्ड 11.1 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 11.1 करोड़ इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन हैज बीन गिवन, और कोवैक्सीन जो है 1.1 करोड़ लोगों को लग चुकी है। दैट मीन्स इन सभी 12 करोड़ पेशेंट्स लोगों को जब ये वैक्सीन लगी है, बहुत ही फिंगर्स पे गिने जा सकते हैं जिनको कोई फीवर हुआ या कोई रिएक्शन हुआ या कोई डेवलप हुआ। कहने का सिर्फ मतलब है दोनों वैक्सीन्स बिल्कुल सेफ है। आपको एज के हिसाब से पहले हमने 60 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन करी, अब हमने 45 ईयर्स टू 60 ईयर्स की करी, और 1 मई से जब मोदी जी ने जब अनाउंस किया कि 18 साल से उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी, तो प्लीज आप बीमारी से डरो, वैक्सीन से नहीं डरो। बीमारी से डरो, वैक्सीन से नहीं डरो। बीमारी अगर हो भी जाती है तो भी माइल्ड फॉर्म में हो, मॉडरेट या सीवियर फॉर्म मत ले। इसके लिए प्लीज आप विश्वास करो डॉक्टर्स पे, विश्वास करो ट्रस्ट पे। मैं आज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई टोल्ड डॉक्टर ऋषि ऑल्सो, मैं आप स्लाइड्स नहीं दिखाना चाहता था, मैं अपने मन से बोलना चाहता था, अपने अंदर से बोलना चाहता था। आज ये विश्वास या मोरल वैल्यूज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत कमी हो चुकी है। डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास कम करते हैं, साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास कम करते हैं, जो कि हमारा एक नॉर्मल फैब्रिक सा बन चुका है पूरे इंडिया का। तो मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है कि जो हमारे टीचर्स SC आनंद साहब, जो हमारे बायोलॉजी के टीचर्स मिस्टर JC चौधरी, जो हमारे स्कूल फिजिक्स के टीचर मिस्टर MD गुप्ता या सेठी साहब या TR गुप्ता साहब ने जो सिखाया था कि अंदर की वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उन वैल्यूज को, अगर हम इंसानियत पे रहेंगे, इंसानियत को नहीं छोड़ेंगे, तो हम दूसरे इंसान पे विश्वास कर पाएंगे। जब हम दूसरे इंसान पे, दूसरे डॉक्टर पे विश्वास कर पाएंगे, दूसरे साइंटिस्ट पे विश्वास कर पाएंगे कि ये वैक्सीन दोनों सेफ वैक्सीन है, इसको हमें लगवाने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, हमारी लाइफ जो इस समय कैस्केड ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं उससे बच सकती है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप स्पेशली यंग बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि खुद तो एक किस्म से अपने आप आके अपनी वैक्सीन लगवाएं, और 1 मई ऑनवर्ड्स ये वैक्सीन शुरू होने वाली है, मगर अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें कि नहीं,
ज़्यादातर फोन्स मुझे आते हैं कि सर मेरे पापा को, मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, ओबेसिटी है, इनके लिए तो वो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो उनके लिए वैक्सीन सेफ है या नहीं। मैं इसको उल्टा प्रेजेंट करता हूं कि उन लोगों के लिए तो ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिनको ये सारी कोमॉर्बिटीज है, ये सारी बीमारियां हैं, उनको तो वैक्सीन असेंशियल है, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो मैंने जैसे बताया, तो चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, चांसेस ऑफ डेथ आर वेरी वेरी हाई। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो दैट आपको कोविड इन्फेक्शन ना हो। कई लोगों के ये मिथ हैं कि जिसको सीजर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनको दौरा पड़ता है, उन वैक्सीन लगाने से दौरा बढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के मिथ हैं कि हाँ अल्कोहल नहीं ले सकेंगे आफ्टर द वैक्सीनेशन। यस, कुछ स्टडीज नहीं हुई हैं जो ये प्रूव करे कि वैक्सीनेशन और अल्कोहल का कोई आपस में रिलेशन है या नहीं है, पर यह स्टडी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जिनके लंग्स कंप्रोमाइज्ड हैं, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ COPD, बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेस या पॉल्यूशन की वजह से, उनके लंग्स अगर इन्फेक्ट हो गए वायरस से तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि कैस्केड ऑफ इवेंट्स बढ़ता चला जाएगा। जिनकी बॉडी ओबेसिटी है उनको और ज्यादा केयरफुल होना है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एडिपोज टिश्यू में, वो वायरस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर वायरस का लोड हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो वो वायरस लोड ज्यादा देर तक शेडिंग होती रहेगी, उसकी वजह से लंग्स, हार्ट को इन्फेक्शन करते रहेंगे और वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। इसके लिए आप सब ने ध्यान रखना है। सो मेरा इस पूरी सेशन का मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो फॉर वैक्सीनेशन वेयर एवर यू आर, व्हाट्सएवर यू आर, but go for the prevention and vaccination. Every vaccine is safe and definitely take care of your own health. इस समय health is happiness. Health is happiness. वही लोग बचे हैं जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करी। इसके लिए मैं बार बार ये समअप करूंगा, सर जाए पर सैर ना जाए। हरकत में बरकत है। 1 million deaths is a statistics, one death is a tragedy. So हम सब का एक ही एम होना चाहिए, इस समय जितनी ट्रेजिडीज को बचा सकते हैं बचाएं। अपनी तरफ से प्लीज डू नॉट थिंक कि सिर्फ डॉक्टर्स का रोल है इस पेंडेमिक को दूर करने का। नहीं, हम सब का उतना रोल है। अगर हम किसी को इंस्पायर कर दें कि हाँ आपको ये SMS करना है और वैक्सीनेशन करानी है, प्रिवेंट करना है, आई थिंक आवर जॉब इज डन। सिमिलरली अगर आप पुलिस में हैं तो अस्पतालों की मदद करें सो दैट ऑक्सीजनेशन आसान हो जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाते हैं या हेल्प करते हैं। व्हाट आई मीन टू से, प्लीज हेल्प द मैनकाइंड एट दिस स्टेज। इट इज ए वॉर, टुडे इट इज ए वॉर, और इस वॉर में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और इस हम सबको एक, मैं हमेशा नेपोलियन बोनापार्ट की एक स्टेटमेंट देता हूं और उसके बाद मैं खत्म करूंगा अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया कि सर वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज ऑल ओवर। He was very positive. All of us know Napoleon Bonaparte was very, very positive. He said, very good. Now we can shoot in any direction. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस समय हम सब का एक ही रोल है कि खुद की हेल्थ का ध्यान रखें, खुद पॉजिटिव रहें, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखें, दूसरों को हेल्प, जितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है करें, हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाएं, वैक्सीनेशन की तरफ चलें, सो दैट जो मॉर्बिडिटी है, जो मोर्टेलिटी है, वो कम से कम हो। और ये दिस टू शैल पास, ये जो टाइम, नेगेटिव टाइम हमारी सबकी लाइफ में चल रहा है, वो भी अगर पॉजिटिव तरीके से हम झेलेंगे तो ये पार हो जाएगा। दिस टू शैल पास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, जो मन में क्वेश्चंस हैं वो पूछिए, क्योंकि क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड, आंसर्स कैन बी स्टूपिड।
I am not the expert to answer every question, but again and again I would request you, जितने मन में क्वेश्चन है, मिथ्स हैं, भ्रांति है, जिस तरीके से भी मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने के लिए, so that even if I am able to save one life, my job is done. Thank you very much. God bless you all. थैंक यू परवीन जी फॉर योर वाइज वर्ड्स एंड आई बिलीव आपने जो अपनी इस कॉन्वर्सेशन के अंदर काफी सारे हमारे आंसर्स जो है ऑलरेडी आंसर हमारे क्वेश्चन जो है आपने आंसर कर दिए हैं बट सर यू हैव ऑलरेडी राइटली सेड वन हैज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट whatever designation and profession you are coming from you have to have the basic manavta in you. That's what is the conclusion of this, and especially in this difficult time when the help is required from every corner. हर जगह से हमें अभी इस समय एज ए ह्यूमन बीइंग हेल्प की जरूरत है, चाहे वो हमारे मेडिकल प्रोटेक्टिस्टर्स हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे केमिस्ट हैं, हमारे रीसेलर्स हैं, ग्रोसरी एजेंट्स हैं, जितने भी हैं, they should not go for profit making right now. They should be helping each other. And sir, we are thankful to all our teaching fraternity और अपने स्कूल को जिन्होंने हमें ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी है, जहाँ से हम आगे एक दूसरे के साथ ये चेन बना के चल सकें और एक अच्छी शुरुआत एक एटलीस्ट इस साइड ऑफ दिल्ली की या इस पूरी दिल्ली के अंदर हम कोशिश करें और एक अच्छा हंसीरियन बनने की कोशिश करें. एंड सर टुडे वी हैव लर्न फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज योर SMS, social distancing, mask and sanitizing. I believe everyone is doing that. और जो कहीं भी इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर आप लागर्जी कर रहे हैं, कोताही बरत रहे हैं, तो please do not take any these kind of mistakes. Do not do any kind of mistakes. And the important piece you have mentioned, pranayam, prawn positions, patience and personal precautions. I must say कि ये जो आपने हमें बताए हैं ये छोटे 4 पीस जो है अगर हम इनको भी फॉलो कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 90% लोग जो है वो अपने आप को घर पे रख कर ही क्योर कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं. सर एज आई ऑलरेडी सेड सर आपने काफी सारे क्वेश्चंस हमारे को ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस आर कमिंग टू माय माइंड फर्स्ट बिफोर आई टेक अनदर क्वेश्चंस. सर काफी सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास सोशल मीडिया पे आ रही है जिसका कि सभी को पता है कि ये जो गूगल यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ये सारी की सारी जो है वो अनऑथेंटिकेटेड और फेक न्यूज इसमें से 99.99% होती हैं और हमेशा डाउटफुल रहती है. पर सर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं समझूंगा कि इसमें से यूजफुल है, जैसे आपने बताया अभी प्रॉन पोजीशंस है या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आजकल व्हाट्सएप पे फ्लोट हो रही हैं, तो सर जितनी एक्सरसाइज आ रही हैं वो सारी अच्छी हैं या उनमें से कुछ ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए और कोई ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए? सर मुझे तो ये लगता है इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए. और इस समय चाहे वो दिन हो या रात हो या कोई भी टाइम, एनी टाइम एंड एवरी टाइम इज ए गुड टाइम फॉर एक्सरसाइज. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि 24 घंटों में अगर हम अपने आप को 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो देन वी हैव टू लुक इनसाइड कि हम कर क्या रहे हैं. और मुझे लगता है कोरोना टाइम में सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा, जो बाकी सब प्रोफेशनल्स ये सब ने सीखा, कि अपने अंदर देखो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अपनी वैल्यूज को देखो, सो दैट अल्टीमेटली चेंज कर पाओ. तो मुझे लगता है कि इवन इफ कोई मुझे आज कहता है कि घर में रहते हैं, हम तो जिम नहीं जा पाते, हम तो स्विमिंग नहीं कर पा रहे, हम साइकिलिंग नहीं कर पा रहे, मैं कहता हूं घर में सीढ़ियां हैं, करें. हाँ तो मैंने कहा 50 बार सीढ़ियां चढ़ो, 50 बार उतरो, आपकी एक्सरसाइज हो गई. कहने का सिर्फ मतलब है. दूसरा, हमारी बॉडी का जो वेट है वो ही इतनी अच्छी एक्सरसाइज करा सकता है, चाहे वो जंपिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज हो. खुद एक कमरे में खड़े होके आज की डेट में यूट्यूब पे इतने सारी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल्स हैं, सामने टीवी चलाएं, एक्सरसाइज करें और लेस्ली सैमसन का डांस भी साथ साथ देखें और साथ साथ एक्सरसाइज करें. And that's the best exercise. So what I mean to say, please give yourself 45 minutes to 1 hour every day without fail, even if it is early morning. I get up at 4 a.m. 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, इस एज में भी. और शुरू से ही, जब से स्कूल से, तब से ये प्रिंसिपल फॉलो करता आया हूँ. टच वुड, अभी कोई मेडिसिन किसी किस्म की नहीं लेनी पड़ती. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक. सर एक क्वेश्चन सभी के मन में भी होगा और एक मिस्टर रवि मानक तल्ला हैं 82 बैच से, उन्होंने अभी पूछा है कि सर जो ये सेकंड वेव है, व्हाई इट इज मोर फैटल? इस समय जो डेथ रेट है इतना ज्यादा क्यों बढ़ा हुआ है? या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का था जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या लोगों की भी इसमें कुछ गलती है? मैं इस एक ना इजी गेम होती है, ब्लेम गेम.
एब्सोल्युटली राइट है ना। तो सबसे इजी गेम है ब्लेम गेम। मैं इस मामले में बहुत ही क्लियर हूं कि अगर हम मक्खी की तरह जिएंगे या मधुमक्खी की तरह जिएंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम मक्खी की तरह जिएंगे तो हम हर चीज जहां पे भी नेगेटिव है ना वहीं जाके बैठे, शेड पड़ी होगी ना मक्खी वहीं बैठती है। और मधुमक्खी जो होगी वो हमेशा फूल ढूंढेगी, फूल में भी नेक्टर ढूंढेगी और नेक्टर से अपना नेक्टर लेगी और आगे चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें तो खुद अपने अंदर देखना है। और बाहर बहुत सारी गलतियां हुई इतने टाइम में, 2 साल में काफी प्रिपेयर्डनेस हो जानी चाहिए थी, जो कि प्रिपेयर्डनेस हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में नहीं हो पाई है। चाहे वो गवर्नमेंट की थी, चाहे वो प्राइवेट की थी, चाहे वो स्टेट की थी या सेंटर की थी, वो सब चीजें अलग हैं। पर इन दिनों में इतना लोगों ने लिबर्टी ले ली कि नहीं कोई नहीं, इंडिया में तो कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है, हमारे यहाँ पे तो वायरस आएगा और चले जाएगा, हम तो बिल्कुल बलवान हैं। तो उसने अपना रूप दिखाना था उस समय। फिर भी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशंस वेव आई, मगर इतना ज्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाई। मगर ये वेव और बिकॉज ऑफ द म्यूटेंट्स ऑल्सो डेफिनेटली वर्स है पहले से और ज्यादा यंग लोगों को भी इन्वॉल्व कर रही है। इसके लिए मैं फिर दोबारा से ये कहूंगा, मधुमक्खी बनो, मक्खी मत बनो। पॉजिटिव चीजें देखो, सिर्फ टीवी न्यूज बिल्कुल मत देखो और अपने आप को इतना फिट कर दो कि वायरस पास भी ना आ पाए। एग्जैक्टली सर। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो जनरली जैसे हमारा सारा जो यूथ अभी कनेक्टेड है, कोई इमीडिएटली फादर्स बने हैं या कुछ ऑलरेडी टीनेज के पेरेंट्स हैं, तो सर इस समय जो हमारे अपने बच्चे हैं, समझो कि 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक के या 18-15 ईयर्स तक के, उन बच्चों के लिए सर कोई मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट शायद अब बताते हैं डॉक्टर्स की कोई है ही नहीं है, उनकी हीलिंग पावर इतनी अच्छी है। फिर भी सर अब जो सेकंड वेव आ रही है, वी आर वाचिंग दैट लॉट ऑफ टीनेजर्स आर गेटिंग अफेक्टेड विद दिस वायरस। तो सर उनके लिए कोई ट्रीटमेंट है और द ओनली द प्रिकॉशन इज द ओनली ट्रीटमेंट? आई वुड से कि स्पेशली जब जैसे ही ये 1 मई से वैक्सीन शुरू होगी तो 18 साल से ऊपर वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सब प्लीज जल्दी से जल्दी अपने क्लोजेस्ट जहां पे भी विश्वास है, जहां पे आपको ट्रस्ट है, वहां से जाके वैक्सीनेशन कराएं, सो दैट अल्टीमेटली जब हम एज 18 to 45 to 60 वैक्सीनेटेड होंगे इन्फेक्शन, तो हम अपने पेरेंट्स को भी इन्फेक्शन से बचा पाएंगे, अपने लेबाइल एज बच्चों को भी इन्फेक्शन से बचा पाएंगे। इस समय आई एग्री विद यू, साइंटिस्ट को पास इतना डाटा नहीं है कि ये वैक्सीन अगर 18 साल से कम लोगों को दी जाए तो उसकी वजह से फायदा होगा। और ट्रीटमेंट में भी दैट विल बी मोर सिम्टोमेटिक। तो मुझे लगता है कि सबसे अगेन एंड अगेन प्रिवेंट, जितना प्रिवेंट कर लेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। और जरा सा एक थोड़ा सा मैं समय इसमें स्पेंड करना चाहूंगा ऑन टेस्टिंग, कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज डू नॉट थिंक कि 1, 2, 4, 5 दिन फीवर हो गया, गले में खराबी हो रही है, लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, फिर भी सोचते रहो कि नहीं कोरोना नहीं है, कुछ और ही है, वायरल है। नो, प्लीज गेट योरसेल्फ टेस्टेड। और इस समय RT-PCR टेस्ट विद इन 24 आवर्स में रिपोर्ट आती है और रैपिड एंटीजन टेस्ट डेफिनेटली उसकी स्पेसिफिकेशन कम, उसको जल्दी से टेस्ट की रिपोर्ट आती है। तो टेस्ट कराएं, अगर पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट करें, अगर पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट करें, मगर कम्युनिटी स्प्रेड मत होने दें, उससे हमारे बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। एक सर कॉमन क्वेश्चन और भी है, जैसे घर में किसी एक को हो गया है, कोविड पॉजिटिव है, और जो हमारे अभी जो जनरली जो हमारे रेजिडेंशियल सिस्टम है इंडिया का, कि साथ बहुत सारे जने एक फ्लोर पे रह रहे हैं, तो सर आइसोलेशन कई जगह पॉसिबल है भी नहीं, 2 बेडरूम ही है या 1 बेडरूम है। सर उस स्टेज पे आकर कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो बाकी बच्चे या बाकी जो घर के लोग हैं वो जो नहीं इन्फेक्टेड है अभी तक इन्फेक्टेड पर्सन से, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे आपने बोला जगह ही नहीं है, तो सेल्फ आइसोलेशन की बात भी करते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस, जो अटेंडेंट फैमिली रह जाती है उनके लिए क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि वो कर सकते हैं व्हेन समबडी इज इन्फेक्टेड इन द फैमिली? वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि डबल मास्क लगाने के लिए जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी, प्लस ज्यादातर इन्फेक्शन जो हुआ है लोगों को वो स्ट्रेंजर्स की वजह से नहीं हुआ है, वो अपनों की वजह से हुआ है। कहने का मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो
पूरे 6 महीने तक उन्होंने ऑपरेशन थिएटर नहीं गए, पूरी प्रिकॉशन ली, वैक्सीनेशन कराई। बच्चा जब MBBS या M.Tech करके आया, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आया और उसके बाद उसने घर में जब आया तो डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हो गए। What I mean to say, इस समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे बच्चों को भी एक सेफ्टी नेट में ही रहना चाहिए। प्लीज डू नॉट थिंक कि हम सिर्फ पेरेंट्स से या दूसरों को डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं या नहीं, कि इस समय दूसरों और ट्रीट एनी एंड एवरीवन एज पॉजिटिव अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। अगर बाहर किसी को भी मिल रहे हैं, जी हम तो खाना घर से बाहर से मंगवाते हैं, कुछ नहीं होता, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। नो, any and everyone should be treated as positive until proved otherwise। अब मान लो घर में एक को इंसान को पॉजिटिविटी हो गई तो आइसोलेशन इज ए मस्ट। किसी तरीके से एक डेफिनेटली अलग रूम में छुप जाना चाहिए और उसमें भी पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े भी हैं, जो आपने वेस्ट भी है, उसको भी डिस्पोज ऑफ ठीक तरीके से कराएं सो दैट एक से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन, जिससे कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। क्योंकि और मुझे लगता है ऋषि जी, मुझे लगता है कि ये मेरी अंदर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए। अगर ये जब चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपना मास्क लगा के रखूंगा, मैं डबल मास्क, इवन इफ आई एम फॉर एग्जांपल सिटिंग एट होम, और अगर मैं इन्फेक्ट हो गया हूं तो मास्क लगा के रखें, डबल मास्क लगा के रखें सो दैट हम दूसरों को इन्फेक्शन ना दें, दूसरों के ऊपर खांसी ना करें, दूसरों के ऊपर अपना वेस्ट मटेरियल, अपने कपड़े वगैरह भी सब ध्यान से डिस्पोज ऑफ कराएं सो दैट और हमारे फैमिली मेंबर्स को ना स्प्रेड हो। एग्जैक्टली सर। सर एक क्वेश्चन और हमारे इसमें से एल्यूमिनाई में से आया है। मिस्टर राकेश भारद्वाज हैं, आपके 97 बैच के ही हैं, सॉरी 77 बैच के हैं। उनका कहना ये है कि सर कोविशील्ड से क्या क्लॉटिंग भी होती है ब्लड की? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पर राकेश जी, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में कहूंगा, फियर इज मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। फियर इज मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। कहने का सिर्फ मतलब है, जो नेसेयर्स हैं, जो मक्खियां हैं, वो हमेशा ढूंढेंगी शिट को। व्हाट आई मीन टू से कि अभी इतने करोड़, जब मैंने आपको बताया कि 11.1 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लग चुकी है, 1.1 करोड़ को कोवैक्सीन लग चुकी है, इसमें से सिर्फ गिने चुने लोगों को थोड़ा सा फीवर हुआ है या साइड इफेक्ट्स हुए हैं या 1-2 दिन के लिए वीकनेस सी महसूस हुई है। कोई ऐसी एसोसिएशन प्रूव या डिसप्रूव नहीं हुई है कि इसकी वजह से क्लॉटिंग हो सकती है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कैच है। कैच ये है, अगर किसी को पहले ही बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं और उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, तो डेफिनेटली वन शुड, फॉर एग्जांपल, अगर आप एसीट्रॉम ले रहे हैं, अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो आपको अपना INR टेस्ट कराना चाहिए। INR अगर 3 से ऊपर है या 1 से नीचे है तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेके अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए सो दैट उस जगह पे ब्लीडिंग ना हो, क्लॉटिंग और ब्लड क्लॉट वगैरह ना बने। बस, बाकी और कोई एसोसिएशन नहीं प्रूव की गई कि वैक्सीनेशन, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो या किसी भी किस्म की वैक्सीन हो, उसकी वजह से साइड इफेक्ट हुए नहीं। तो इसको हमारे बिल्कुल क्लैरिटी है कि इसको मन से निकाल दे कि ब्लड क्लॉट्स की टेंडेंसी बढ़ जाती। मैं दोबारा एक ही वर्ड यह कहूंगा, बीमारी से डरो, वैक्सीन से नहीं डरो। सर एक जनरल क्वेश्चन और भी आ रहा है लोगों का, मतलब आई एम एडिंग 2-3 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर कि हमारे को अपनी डाइट जो है वो कैसे रखनी है, किन चीजों का इनटेक बढ़ा देना चाहिए, टीनेजर्स के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, और जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं या रिकवर मोड में हैं, जिनका पहले पॉजिटिव आया था लगभग 10-5 दिन पहले, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो काफी, जैसे मैंने बोला, नेट पे मिल रही है, पर हियरिंग फ्रॉम द राइट माउथ वुड बी एडिंग मोर ऑथेंटिसिटी टू दिस। इसके लिए फिर मैं वापस P पे चला जाता हूँ। P इज प्रोटीन। Okay. Right? इस समय I'll add one more P to this, protein. I know. So P is prone, P is prevention, P is protein diet. So और P से इसमें जो प्रोटीन डाइट की इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी
प्रोटीन से सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। जो शुगर इज़ द अल्टीमेट किलर, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर अल्टीमेट किलर्स। उसको जितना कम से कम शुगर को इनटेक रखेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। चीनी, चपाती, चावल, चिकनाई, चारपाई से दूर रहें। So these are negative C's what we have to avoid. एग्जैक्टली चीनी, चारपाई, चिकनाई, चावल और चारपाई। चिंता से भी, अगर स्ट्रेस भी ज्यादा कर रहे हैं तो भी डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इनसे दूर रहें। प्रोटीन 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 अपना इनटेक, अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो फ्राइड ना लें, रोस्टेड चिकन लें, फिश लें, एग लें। और सिमिलरली अगर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन में पनीर, दालें, दूध, दही का सेवन बढ़ाएं। और अंडा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग वाइट ले तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रेजिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होगी, उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन हीलिंग फास्ट होगी तो आप इन्फेक्शन से दूर हो जाएंगे। एग्जैक्ट सर, आरुष जी जो हमारे बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनके सर दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो सर जो ऑलरेडी जो लोग रिकवर कर चुके हैं अपना कोविड से, क्या दोबारा उनको भी हो सकता है? यस। क्या थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कहीं उनके अंदर रह भी सकता है? और दूसरा उनका क्वेश्चन है कि सर जो एक जनरल क्वेश्चन भी है कि मास्क भी बड़ी तरह का मिल रहा है मार्केट में। वेरी गुड। मतलब 50 पैसा से लेकर जो है 500 रुपीज तक का मास्क है। डबल मास्क तो जैसे आपने हमें गाइड कर ही दी है, तो उसके अलावा जैसे कोई N95 या सर्जिकल टाइप 3 लेयर मास्क है या कुछ है, तो विच वन इज बेटर? या जो होममेड घर में कॉटन के लोग आजकल घर में भी बना रहे हैं और उसको डबल यूज कर सकते हैं, हाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट पॉजिटिव इन दिस थिंग? वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चंस आरुष जी का। जी मिस्टर आरुष का तो वो एक्सीलेंट क्वेश्चन। उसमें क्या है ना कि कभी मत सोचिए कि अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा, तो आप सारी जितनी SMS प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें। क्योंकि इस वायरस की टेंडेंसी है कि दोबारा अटैक, इसमें किसी को भी नहीं मालूम। इसमें ना एक फेज है, फेज ऑफ अनसर्टिनिटी। किसी को कुछ नहीं पता। कोई साइंटिस्ट, चाहे वो ICMR के हों या WHO के हों या CDC के हों या कहीं के भी हों, सिर्फ चाइनीज को पता है, बाकियों को किसी को नहीं किसी को नहीं पता कि ये वायरस कितनी देर तक एंटीबॉडीज बनाएगा और कितनी देर तक वो एंटीबॉडीज रहेंगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसलिए प्लीज टेक दी प्रिकॉशंस। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे सर्जन्स मुझे मालूम है जिनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। बट डेफिनेटली अगर वो वैक्सीनेटेड हो चुके थे इतने टाइम में, इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, मगर वो माइल्डर फॉर्म में निकल गए। तो इसलिए वैक्सीनेशन का फिर दोबारा से इसी पॉइंट पे रोल है। दूसरी क्वेश्चन जो है, जो मास्क के बारे में, N95 जो स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो स्पेशली हॉस्पिटलाइजेशन में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हैं, एसोसिएटेड हैं, उनके लिए तो मैं कहता हूं कि N95 मास्क पहले बहुत जरूरी, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क दूसरा जरूरी। क्यों? पहले शुरू में, यस, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कपड़े का मास्क या वर्सेस सर्जिकल मास्क वर्सेस N95 मास्क वर्सेस लैक्स ऑफ रुपीस का मास्क, अल्टीमेट आंसर इज कि हमारे को एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो नोज है उसको कवर होना है, माउथ को कवर होना है, क्योंकि वायरल शेडिंग जो हो रही है वो नोज और माउथ से ही हो रही है। तो अगर आपने हजारों रुपए का मास्क लगा भी लिया, मगर लगाया वो आपने गर्दन पे, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस लगा के घूम रहे हैं। मैं बड़ी सॉरी फॉर सेइंग सो, कि पॉलिटिशियंस सिर्फ वो सोचते हैं कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, सबसे बड़ा डॉक्टर हम हैं, वो सिर्फ यहाँ गर्दन पे मास्क लगा के और सारे टीवी फ्रेम्स के अंदर नजर आते हैं। उससे हमारा मोरल डाउन काफी ज्यादा हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग हम मास्क लगाएं। और अच्छा, दूसरी बात, जब आपने एक मास्क लगाया जिसमें नोज को और माउथ को कवर किया, पर डेफिनेटली हर बॉडी की, हर फेस की एक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि भगवान की इस मास्क ने बाद में मास्टरी है कि सबको डिफरेंट फॉर्मेट दिया। तो उसमें क्या है कि कोई एक पैंट सबको पूरी नहीं आएगी, कोई एक किस्म का मास्क सबको पूरा नहीं आएगा। तो उसमें हो सकता है कि यहाँ वाला जो एरिया है वो खुला रह जाए और उसकी वजह से वायरल लोड चाहे आ जाए या चला जाए। तो उसके लिए ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया है कि अगर आपने एक N95 मास्क लगा लिया, उसके ऊपर चाहे क्लॉथ का मास्क लगाया या
एक सर्जिकल मास्क लगाया, उससे क्या होगा, जो बाकी स्पेस भी है या मास्क जो है वो अच्छी तरीके से माउथ के ऊपर, फेस के ऊपर अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, उससे वायरल शेडिंग या वायरल अपटेक डेफिनेटली कम हो जाएगा। वो किसी किस्म का मास्क हो, हार्डली मैटर्स, बट इट शुड बी रिलीजियसली अप्लाइड ऑन द नोज, on the mouth, not never on the neck, and it should be double masked whenever, wherever, even if you are meeting the family members, even if we are meeting the strangers. Fantastic, sir. Sir, questions तो अभी बहुत सारे आते जा रहे हैं, but मैं I'll try to take it a little faster. Sure. We have got a question from No, Kashmir. honestly, I have enough time. Don't worry about Oh, it. fantastic, sir. Thank you very much. And our Zoom program is also timeless, Right. so we can go till the time you Sure, are going to answer. sure. So Kashmir is asking, is vaccination safe for 60 years age cancer survival? Secondly, and ना, एक-एक the करके- other एक-एक करके question पूछते हैं, is, एक-एक करके any पूछते हैं। specific vaccine you recommend for this? Yes. For the people who are more than 60 years but cancer survivor, right? Yes, sir. I would say for them it is mandatory. It is essential. क्यों? क्योंकि उसकी because of cancer, because of chemotherapy, immunity कम हुई है। अगर उनकी immunity कम हुई है, पर ये इसमें एक caution है। caution ये है कि for example, अगर आप आज chemotherapy लगवा रहे हैं और इस समय आपका TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम है, तो यस, आज मत करें, आज मत वैक्सीन लगाएं, बट थोड़े टाइम के बाद जब वैक्सीनेशन खत्म हो जाए तो अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछें और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन लगाएं, सो दैट मिसमैच ना हो। कि क्योंकि इसमें भी जब हम वैक्सीन कराते हैं, जब वैक्सीन लगाते हैं, तो इम्यूनिटी एकदम अल्टर होती है, तो इम्यूनिटी, और उसकी वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म भी आ सकता है। स्टॉर्म का मतलब है कि इतनी सारी एंटीबॉडीज, एंटीजन की लड़ाई हो गई आपस में, तो वो एक रिएक्शन कर सकती हैं। तो वो सिचुएशन ना, साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह सिचुएशन ना आ जाए, तो इसके लिए मैं अगेन एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, फॉर देम इट इज मैंडेटरी, but the timing is more important and one should always consult the medical or the surgical oncologist before going in for the vaccination. किसी किस्म का डर नहीं है। सिमिलरली जैसे हमने थोड़ा सा टाइम दिया था ऑन ब्लड थिनर्स, अगर आप ब्लड थिनर्स पे भी हैं, चाहे वो इकोस्पिन ले रहे हैं, चाहे वो लिक्विड्स ले रहे हैं, तो भी वैक्सीनेशन जरूर होनी चाहिए। बस ओनली थिंग इज, अगर मैं और आप इस एज में अगर हमें 1 मिनट के लिए प्रेस करना है, तो उनको 2 मिनट के लिए प्रेस करना है, दैट्स इट। तो ब्लड थिनर्स वालों को भी लेनी है, कैंसर वाले पेशेंट्स को भी वैक्सीन लेनी है, 60 साल की उम्र वालों को तो सबको लेनी है। मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है, 137 करोड़ और सो हमारी पॉपुलेशन है, और इस समय सिर्फ 12 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, हालांकि फ्री मिल रही थी, हालांकि थोड़ी सी कॉस्ट में मिल रही थी। तो इससे लगता है कि अवेयरनेस कम है, इससे लगता है कि डर बहुत ज्यादा है। तो उस डर को अगर हम दोनों मिलकर इस डर को हटा दें और आगे लोग मोटिवेट करें कि नहीं, प्लीज, एक ही रोल है, एक ही प्रिवेंशन हो सकती है, वो वैक्सीनेशन, तो लेट अस गो अहेड। सर, एक क्वेश्चन बार बार लोग अपनी अपनी जो है मेडिकल हिस्ट्री लिखकर भेज रहे हैं मेरे को कि क्या मैं लगवा सकता हूँ, या मेरे पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, या ब्लड काउंट इतना है। तो इंस्टेड सर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करता हूँ, कौन लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। बस जो, और बाकी तो इसका मतलब सेकेंडरी वो रह गए जो सभी लगवा सकते हैं। कोई लोग ऐसे हैं जिनको, या कोई पेशेंट्स या जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी हो जिनको ये एडवाइजेबल नहीं है वो वैक्सीनेशन के लिए जाए। अदरवाइज आई बिलीव आपका ये आंसर काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देगा कि भाई किन किन को जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा इसको टर्न दिया, गुड। तो इसके लिए आंसर यह है कि सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होंगे और हैं जिनको फॉर एग्जांपल एलर्जी की हिस्ट्री है, राइट? तो अगर मान लो किसी को पेनिसिलिन की एलर्जी है, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज है मेरे, तो उनको क्या है कि उनको एलर्जी है सारे पेन किलर से और सारे एंटीबायोटिक से। और ऑनेस्टली आई हैव आल्सो सीन कि एक इंजेक्शन उनको कहीं दिया गया और उसके बाद उनको एनाफाइलेक्सिस तो हो गया। एनाफाइलेक्सिस का मतलब एकदम ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। तो इसलिए वो गुड़गांव से मेरे पास आते हैं हमेशा, और हर छोटे से छोटा कभी भी कोई तकलीफ होती है तो मेरे पास आते हैं कि उनको मालूम है कि मैं ट्रस्ट है, एज सिंपल एज दैट। मगर उनको भी जब मैंने वैक्सीन के लिए बुलाया तो उनको मालूम था कि मेरे पास बीइंग ए सर्जन एनेस्थिस्ट हमेशा अवेलेबल होता है भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो उनको हमने पहले एक स्टेरॉयड की टेबलेट दी,
और स्टेरॉइड की टेबलेट देने के बाद फिर वैक्सीनेशन दी फर्स्ट डोज। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं और आप, अगर हमारे को कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई हिस्ट्री एलर्जी की नहीं है, तो हम 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रखते हैं पेशेंट को। पर इनको मैंने 1 घंटे तक घर में भेजा। कहने का मतलब अगर डिलेड एलर्जिक रिएक्शन भी ना हो जाए, ना हो तो इसके लिए स्टेरॉइड दे दें, और स्टेरॉइड दे के और उसके बाद वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और सेकेंड डोज में भी सेम कि एनेस्थिस्ट की प्रेजेंस में स्टेरॉइड दे के और फिर वैक्सीनेशन लगवाएं। अदरवाइज किसी भी पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ओके, फैंटास्टिक। सर, 1-2 क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं लोगों के मेरे ख्याल से, क्योंकि अब काफी सारी दिल्ली में लोग इन्फेक्टेड हैं, तो किसी का कोई घर के साथ कोई नेबर इन्फेक्टेड है। जैसे पुनीत भोला ने भी अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरे नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो इन्फेक्टेड है और मेरे घर के सामने पार्क है, मैं कैसे जाऊं कैसे नहीं जाऊं एंड ऑल दैट। तो क्या प्रिकॉशंस जो हेल्दी लोग हैं या जिनके घर में, या जैसे अभी आपने पहले भी बताया था, या जिनके नेबर्स हैं या बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, फ्लैट ओनर्स हैं, या ऊपर नीचे रह रहे हैं लोग डिफरेंट अपार्टमेंट्स में, अगर उनमें कोई पॉजिटिव है तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन दे शुड टेक? आई बिलीव काफी कॉमन चीजें हैं, जैसे कि लिफ्ट के अंदर जब यूज कर रहे हैं ग्लव्स पहन के यूज करना है, या फिंगर्स नहीं यूज करनी है लिफ्ट के बटन दबाने के लिए, या जो नॉर्मल कॉमन डोर्स हैं एंट्री के उनको खुला ही रखें, या किसी चीज से खोलें, अपने हाथ नहीं यूज करने हैं, सैनिटाइज करते रहना है जैसे आपने पहले बताया। इसके अलावा भी सर कोई प्रिकॉशंस हैं जो कि हेल्दी पीपल को लेना है जिनके आसपास घरों के कोविड पॉजिटिव केसेस हैं? मैं तो एक फिर दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा कि ये पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए आपने, मगर फिर भी वैक्सीनेशन कराओ जल्दी से जल्दी। वैक्सीनेशन करा लोगे तो उससे प्रिवेंशन हो जाएगी इन्फेक्शन की। बट डेफिनेटली आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। कोई पॉइंट नहीं है इस समय, मैं आई एम सो सॉरी टू से, इस समय जप्पी पाने का, या इस समय इस समय इतना क्लोज डिस्टेंस मेंटेन करने का नहीं। इस समय अपनी जान सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरे की जान भी तभी बचेगी जब हम सबकी जान बचेगी। तो इसके लिए अगर किसी पड़ोसी को किसी को इन्फेक्शन हो भी गया है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो, मास्क रखो, सैनिटाइज करते रहो, और गो इन फॉर वैक्सीनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट अगर इन्फेक्शन होना भी है आपको तो भी माइल्डर फॉर्म में निकल जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या, ये कई आप इसका मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रेजेंट करता हूं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये खत्म भी होएगा या नहीं होएगा, या ऐसे ही चलता रहेगा। तो होगा क्या, जब 80% हार्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। हार्ड इम्यूनिटी कैसे होगी, या तो आपको इन्फेक्शन हो गया या आपको वैक्सीनेशन की वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। तो जब वायरल लोड कम होना शुरू हो जाएगा तभी इसका समाधान होगा, नहीं तो ये समाधान नहीं होगा। तो इसके लिए रिक्वेस्ट मेरी यही है कि प्रिवेंशन की तरफ भागें और प्रिवेंट कराएं रादर देन सफर करें। जो सफरिंग है इसमें बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ओके। सर, दीपक धर्मारा जी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, उनका सर एक क्वेश्चन है कि क्या कोई थर्ड बूस्टर डोज भी आएगी इसके लिए, या 2 डोज जो गवर्नमेंट अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दे आर इनफ फॉर मेकिंग द बॉडी इम्यून टू दिस काइंड ऑफ वायरस? डॉक्टर मिस्टर दीपक धर्मारा को मैं ये कहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग गुड क्वेश्चन। और इसमें सिर्फ एक ही आंसर है इसका, अनसर्टिनिटी, टोटल अनसर्टिनिटी है कि किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये बीमारी, आप ये सोचिए ना कि सिर्फ 1.25 साल की तो बीमारी है, 100 साल की बीमारियों के बारे में भी अभी तक हम पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, ये तो सिर्फ 1.25 साल की बीमारी है। तो इसमें किसी को नहीं मालूम, हालांकि लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन स्टडीड, उनकी एंटीबॉडीज। कई बार क्या होता है, वैक्सीन, दोनों वैक्सीन हो गई, उसके बाद जब एंटीबॉडीज कराए गए तो पता लगा बहुत ही कम एंटीबॉडीज थी, या कुछ लोगों की बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज थी। तो और वो एंटीबॉडीज कितने टाइम तक प्रोलॉन्ग रहेंगी, ये टाइम इज गोइंग टू टेल। वी शुड लिव फॉर टुडे, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। अगर हमारे को इस समय तक की स्टडीज में क्लियर कट बताया गया है कि 2 वैक्सीनेशन, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोविशील्ड लगवा रहे हैं तो 42 दिन का डिफरेंस होना चाहिए, अगर हम कोवैक्सीन लगवा रहे हैं तो 28 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, अगर हमने यूएसए में फाइजर की वैक्सीन लगवाई है तो 21 डेज की डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हमने ये कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद फिर हमें समय बताएगा, वो टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय बताएगा कि यस, इससे आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिली है या नहीं मिली। अगर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिली तो हो सकता है कि थर्ड बूस्टर या सेकंड बूस्टर भी लगवाने पड़े। ओके सर, एक जैसे अभी आपने जो गैप बताया 2 वैक्सीनेशंस के बीच में, मेरे घर में एग्जांपल है, मेरे मदर फादर दोनों सीनियर सिटीजन हैं,
तो जब मेरी मदर को वैक्सीनेशन लगा कोविशील्ड महाराजा अग्रसेन से, तो सर उन्होंने पहले बोला कि 28 डेज के बाद आपको सेकंड डोज लगनी है। मेरे फादर को 1 वीक के बाद मैंने लगवाया, तो उन्होंने फिर वो जो गैप है उसको 6 वीक्स कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये सर कोई साइंटिफिक थ्योरी है या शॉर्टेज की वजह से ये गैप बढ़ा रहे हैं? इसका आंसर बड़ा सिंपल है, जो नहीं देना चाहिए, है ना? कहने का मतलब ये इसमें इसके पीछे पॉलिटिक्स ज्यादा है, ओके, साइंटिफिक डाटा नहीं है। साइंटिफिक क्योंकि इन लोगों ने ये सोचा, मैं आई एम सॉरी टू से सो, जिस समय हम भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में भी 28 डेज की स्टैंप लगा के देते थे, हर एक पेशेंट को रटा के भेजते थे कि 28 डेज के बाद लगना है। अचानक इनको लगा कि हमारे पास पीछे सप्लाई कम है वैक्सीन की, और अगर हमने इसी स्पीड पे करना शुरू कर दिया सेकंड डोज पे, तो कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट डोज कम लोगों को मिले। तो इसलिए ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये उन्होंने 42 डेज कर दिया, 6 to 8 वीक्स कर दिया, रादर देन साइंटिफिकली दे हैव प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि 4 वीक्स इज द बेस्ट टाइम फॉर गेटिंग द रिपीट वैक्सीनेशन। मगर 4 to 6 वीक्स का आता साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने भी सोचा 4 to 8 वीक्स कर देते हैं। तो अल्टीमेटली इस समय 42 दिन पे लग रही है, एज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट फॉर योर फादर। So 42 days from the first vaccination in case of Covishield and in case, अच्छा दूसरा एक और कैच है इसमें कि आपने भी देखा कि कोवैक्सिन वैक्सीन के लिए फिर वही सेम 28 दिन मेंटेन किया, और पर वो लगी है सिर्फ 1.1 करोड़ लोगों को, और जो कोवैक्सिन जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो लगी 11.1 करोड़ को। तो आप अपने आप अब जज कर सकते हो क्या रीजंस थे एक्सटेंड करने के। एग्जैक्टली। सर एक दो क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं लोगों के कि भी जो हमारे पास अभी जो अगेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे या गूगल यूनिवर्सिटी पे ज्ञान बंट रहा है कि हमारे को कुछ विटामिन की डोज बढ़ा लेनी चाहिए या खुद अपने आप से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, और वी शुड गो टू अ डॉक्टर फर्स्ट टू गेट द प्रिस्क्रिप्शन। यस, गुड क्वेश्चन। माय आंसर इज कि अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, प्लीज डू नॉट ओवर ट्रीट योर सेल्फ। प्लीज डू नॉट थिंक कि ये क्रचेस की वजह से हम जीत जाएंगे। नहीं, अपने पैरों पे चलेंगे तो जीतेंगे। तो उसके लिए प्लीज अपनी सेहत का ध्यान, जैसे मैंने पहले कहा था, लुक विद इन अपनी बॉडी को। अगर आपका वेट एक्सेस में जा रहा है तो एक टारगेट कर दो कि 10% वेट लॉस करना है मुझे इतने पीरियड में, सो दैट मेरी बॉडी फिट रहेगी। तो डाइट अच्छी रहेगी, प्रोटीन डाइट रहेगी, कार्बोहाइड्रेट मिनिमम हो जाएंगे, फैट्स कम हो जाएंगे, किसी ABCDE विटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और उसके बाद अगर आप होम आइसोलेशन पे हैं और आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं प्रोन पोजीशन, लंबा सांस, ऑक्सीजनेशन, प्रोटीन डाइट और अच्छी हाइड्रेशन, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, तो चांसेस हैं कि आप 80 to 90% चांसेस हैं कि आप इसी इन्फेक्शन से एक हफ्ता 1.5 हफ्ते में निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बट कुछ परसेंटेज जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी उनको डेफिनेटली, चाहे वो वीडियो कंसल्ट हो सके, इस समय जो जूम की वजह से आई एम थैंकफुल टू जूम ऑल्सो कि वीडियो कंसल्टेशंस करो डॉक्टर्स के साथ। फिजिकल हॉस्पिटल में जाके सिर्फ कंसल्टेशन करने में हो सकता है कि आप हॉस्पिटल जाके इन्फेक्शन भी ले आए, वायरस भी ले आओ साथ में गिफ्ट में, तो वो ना लाओ। तो बेटर आंसर है कि वीडियो कंसल्टेशंस करें, और उससे अगर थोड़ी बहुत मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C ये लेना है तो ले सकते हैं। बट अगेन आई वुड पुट इट ए, गला अगर खराब है, बुखार अगर है, लॉस ऑफ टेस्ट है, टेस्ट जरूर कराएं, उसके बाद बीटाडीन गार्गल्स करें, उसके बाद स्टीम इनहेलेशन करें, सो दैट लंग्स को अच्छी तरह से एक्सपैंड करें कि उसके अंदर, लंग्स के अंदर वायरस ना टिके। एक सर क्वेश्चन है हमारे टीचिंग स्टाफ की तरफ से, सजनी खन्ना मैम है, किंडरगार्टन की इंचार्ज है मैम। शी इज आस्किंग, विल आई नॉट बी वैक्सीनेटेड बिफोर 45 डेज? उनका क्वेश्चन है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि 45 डेज से पहले भी हम लगवा सकते हैं या उसके बाद लगवाना चाहिए? नहीं, इसमें क्वेश्चन में पहले तो उनकी एज पूछो, एज कितनी है? I believe she must be around sir early 50s. हाँ, तो अर्ली 50 अगर लगवा चुकी हैं वैक्सीन, तो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी बताया कोविशील्ड अगर वैक्सीन लगवाई है तो 42 डेज इज द आइडियल टाइम, कोविशील्ड की नेक्स्ट डोज लगनी चाहिए। और अगर
कोवैक्सीन की वैक्सीन लग चुकी है तो 28 डेज पे कोवैक्सीन लगनी चाहिए. देयर इज नो हार्म. हर क्वेश्चन इज देयर इज नो हार्म इफ फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैक्सीन वाज कोविशील्ड और वो 35 डेज पे अगर लगवा लेती हैं, कोई हार्म नहीं होगा, फायदा हो सकता है. ओके ओके. एंड सर एक काफी लोगों ने एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि जैसे उन्होंने फर्स्ट लगवा लिया था इंजेक्शन या उनकी फैमिली में किसी ने लगा लिया, ड्यू टू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन वो दूसरा इंजेक्शन उनका डिले हो गया है या वो जा नहीं पाए हैं, तो अगर जिनके 45 डेज समझ लें या 28 से लेके 45 डेज का पीरियड भी ओवर हो चुका है, तो क्या उनको भी लगवा लेना चाहिए? और दे हैव टू रीस्टार्ट द ट्रीटमेंट वंस अगेन कि फर्स्ट लगाएं फिर सेकंड लगाएं? नो, दे शुड नॉट रीस्टार्ट. अभी तक एक डोज लगी और उसके इसमें ना अब इन्होंने क्या किया है, जो हम जब वैक्सीन देते हैं तो एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो सर्टिफिकेट पे बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया है फॉर एग्जांपल कोविशील्ड के लिए कि आपको 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, आप कभी भी लगवा सकते हैं. दैट मीन्स 8 हफ्ते तो हो गए, 2 महीने तो हो गए. तो कहने का मतलब अगर किसी का टाइम थोड़ा सा डिले भी हो गया, डोंट वरी, गो फॉर दी बूस्टर डोज एंड गेट इट डन. बट देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग. मतलब वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोक में वैक्सीन ले ली कि शायद वायरस बच जाएगा. एक सर बहुत अच्छा क्वेश्चन मिस रंजू मदान ने भी पूछा अभी कि जैसे घरों के अंदर अब सेल्फ आइसोलेशन काफी ज्यादा हो रही है, वॉशरूम्स का नंबर लिमिटेड है. अब अगर जैसे कोई कोविड पॉजिटिव पर्सन वॉशरूम यूज कर आया है, तो कितनी देर तक नेक्स्ट जो पर्सन है उसको वो वॉशरूम नहीं यूज करना चाहिए अगर अनफॉर्चुनेटली एक ही वॉशरूम है? गुड क्वेश्चन. इट इज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल आंसर इज कि अगर मान लो इस समय एक्टिव इन्फेक्शन है, कोविड इन्फेक्शन एक्टिव है, तो बेटर आंसर है कि अगर अलग बाथरूम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आइसोलेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों का टॉयलेट यूज कर लो रादर देन उसका सेम पेशेंट का शेयर करने के लिए बजाय. अगर मान लो है भी सही तो उसके लिए आंसर वही है कि उसको भी, पेशेंट को भी बोलो बार हैंड वॉश करें, मास्क पूरा पहन के रखें, और जो डिस्पोजेबल अपने गारमेंट्स हैं उसको भी एक पॉलीथीन बैग में डिस्कार्ड करें, सो दैट अल्टीमेटली नेक्स्ट पर्सन को ना इन्फेक्ट, क्योंकि ये वायरस है, ये वायरस डेफिनेटली एक से दूसरे को जा सकता है. तो उसके लिए अगेन एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, आइसोलेशन मीन्स bathroom separate, room separate, and it should be locked. And even if, for example, if one has to give the food also, प्लेट में भी देनी है तो प्लेट बाहर रख दें कमरे के, और उसको कहें कि जब मैं दूर चली जाऊंगी तो आप अपना दरवाजा खोलें और खाना अंदर ले लें, so that you are not getting the virus load from that person. तो इसके लिए ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है. और इसके दूसरा जो छुपा हुआ आंसर यही है कि बार हाथ वॉश करते रहो, मास्क लगा के रखो. जो पेशेंट एक्टिव श्रेडर है, इसमें सबसे बड़ी कहानी है ना श्रेडर की, जो वायरस श्रेड कर रहा है उससे दूर जो स्प्रेड कर रहा है, और वो साइलेंट स्प्रेडर भी हो सकता है. तो इसके लिए उसको मास्क लगाए, घर के अंदर भी आइसोलेशन में भी है तो भी मास्क लगाए, डबल मास्क लगाए, बार हाथ धोए, सैनिटाइज करें, और आपने भी कोई चीज को भी उनके टच करने से डरना है, इस समय डरना है. एग्जैक्टली सर. एक क्वेश्चन और भी है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जिनके अभी जिन्होंने कंसीव किया है या जिनकी डिलीवरी ड्यू है, क्या उनको भी कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और क्या ये वैक्सीनेशन उनके लिए भी है, या दे शुड अवॉइड टिल द डिलीवरी इज हैपनिंग? आई वुड से दैट प्रिकॉशन पहले लेने चाहिए थे. मतलब प्रिकॉशन लेने चाहिए थे नॉट टू बिकम प्रेग्नेंट. बट नाउ आई नो आई एम जस्ट जोकिंग. तो अगर इस समय अभी तक प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया गया कि ये वैक्सीनेशन सेफ है इन प्रेग्नेंट्स और नॉट, तो इसलिए अभी तो प्रेग्नेंट्स को वैक्सीनेशन नहीं दी जा सकती. तो वैक्सीनेशन नहीं दी जा सकती. और दूसरी बात यह है, अगर प्रेगनेंसी है और अगर आसपास कोई इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो यू शुड टेक मोर प्रिकॉशंस रादर देन लेस. और वो सारी जैसे प्रिवेंशन वाली प्रिकॉशंस थी SMS वाली, वो करते रहें. अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और अगर कोई बाद में कोई एंटीवायरल या मेडिकेशन लेनी भी पड़ी तो वो भी बच्चे के लिए जालिम हो सकती है. तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना है. वी अप्रिशिएट सर. एक सर क्वेश्चन और भी, बार काफी लोग उसी शायद जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो एक गैप है वैक्सीनेशंस का, वो आपने काफी क्लियर कर दिया कि 28 डेज से लेके 42 डेज तक के बीच में आप कभी भी ले सकते हैं, और अगर किसी का डिले भी हो गया है तो देन ही शुड आल्सो गो फॉर दैट, ही शुड नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, कि जो भी उसके सर्कमस्टांसेस है. और सर एक क्वेश्चन अभी किसी और ने भी ये पूछा है कि जिसको अभी कोविड पॉजिटिव है, वो
और अभी जिसकी समझो कि नेगेटिव की रिपोर्ट आई नहीं है बट वो समझ रहे हैं कि मैं नेगेटिव हो गया हूँ, क्या वो तब तक वेट करें नेगेटिव की रिपोर्ट की? क्योंकि जो पहले एक 24 या 36 आवर्स में रिपोर्ट आ रही थी वो अब 72 आवर्स में भी और 96 आवर्स में भी नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ लोड। तो वो 4-5 दिन का पेशेंस रखें, दे शुड हैव द नेगेटिव रिपोर्ट इन हैंड, देन ओनली दे शुड गो, वेरी और गुड, दे कैन गो। वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए मुझे लगता है कि वही बॉइल्स बैक टू मोरल वैल्यूज, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हमारे को कोविड प्लस आ गई, अगर हमने आइसोलेशन भी रख लिया, और अगर हमने 14, कुछ डॉक्टर्स भी अब कहना शुरू कर दिए हैं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है टेस्ट कराने के लिए, रहने दो। नाउ आई ऑलवेज अपोज दैट व्यू पॉइंट कि जब, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया कि 14 दिन के बाद भी नेगेटिव नहीं आती है रिपोर्ट, तो हम कहते हैं कि 4 दिन के बाद फिर टेस्ट कराओ। अगर 4 दिन के बाद फिर अगर नेगेटिव आएगी तो डबल 2 बार अगर नेगेटिव आएगी तो अपने आप को समझो कि नाउ यू कैन नॉट शेड द वायरस, नाउ यू कैनॉट गिव द वायरस टू समबडी एल्स। अगर आपको मान लो आपने काम पे ज्वाइन कर लिया, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया कि ज्वाइन किया, अपना कोविड प्लस हुआ और 14 दिन के बाद सोचा कि अब तो मेरे को कोई फीवर नहीं है, बॉडी एक नहीं है, सोर थ्रोट नहीं है, तो मैं अपना हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और उसकी वजह से बिकॉज ही वॉज एन एक्टिव, ही और शी वॉज एन एक्टिव वायरल शेडर, तो उसने दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर दिया। इसलिए हम बिल्कुल क्लैरिटी है कि 14 दिन के बाद भी, आई नो देयर आर पीपल हु विल अपोज दिस थॉट कि गाइडलाइंस कहती हैं, ये कहती हैं। मुझे लगता है कोई गाइडलाइंस नहीं है इस समय, मोरल गाइडलाइन इज मोर इंपॉर्टेंट, कि मेरी वजह से किसी और को ना इन्फेक्शन हो, मेरी वजह से किसी, मैं आई शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दिस इन कम्युनिटी। बस इतना अगर हमें समझ आ जाएगा, जब नेगेटिव हो जाए और अगर 2 बार टेस्ट हो जाए, 2 बार नेगेटिव हो जाए, तो सेफ्टी सांस लो कि अब मामला ठीक है, अब मैं किसी और को नहीं दे सकता। राइटली सेड। अभी इनफैक्ट मेरे नोन टू ही हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम आया और उन्होंने दे हैव आइसोलेटेड देमसेल्फ फॉर मोर देन 21 डेज नाउ, पर अभी भी उनका जो सेकंड टेस्ट आया है वो उनका अभी भी वो पॉजिटिव ही आया है। उनको कोई अभी भी कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, पर अगेन एज वी हैव सेड वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड आई विल सर्टेनली सजेस्ट देम कि एक बार नहीं 2 बार जब तक नेगेटिव नहीं आ जाए वो तब तक नहीं कराना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक सेकंड, इसी में ही एक छोटी सी मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो हम शायद उस समय टच नहीं कर पाए, कि कुछ 14 दिन हो गए, फॉर एग्जांपल आपको पॉजिटिव थे, आपने पूरी प्रिकॉशन ली, आपको अब एंटीसिपेशन है कि मेरा सिम्टोमेटिकली मैं ठीक हो गया हूँ, और रिपोर्ट जैसे आप कह रहे हो कि 24 आवर्स में आ जाती थी और अब 48 आवर्स भी लग रहे हैं, अब 96 आवर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दी वर्कलोड। अभी आपको, हम सबको ये समझ आना चाहिए कि RT-PCR के लिए 6 घंटे का रोटेशन साइकिल चाहिए। अगर एक टेस्ट को, जो पहले सिर्फ 100 या 150 टेस्ट हो रहे थे, अब एक लैब के अंदर अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी एक्सरे क्लिनिक है मेरे साथ जो एसोसिएटेड है बाटा ग्लोबल में, उनमें 2500 टेस्ट रोज के हो रहे हैं। अगर 2500 टेस्ट रोज के हो रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि 6 घंटे का अगर रोटेशन साइकिल चाहिए, सेंट्रीफ्यूगेशन चाहिए एंटीजन को सेपरेट करने के लिए, तो वो कैसे रिपोर्ट देंगे? मगर अगर जब रिपोर्ट 48 घंटे बाद भी आ रही है, तो कुछ ऐसे टेस्ट, जैसे RT-PCR टेस्ट हो गया, एक उसकी रिपोर्ट आती है 48 घंटे में, बट कुछ रैपिड टेस्ट भी हैं जिनकी रिपोर्ट 6 घंटे में भी आ सकती है, बट उसकी कॉस्ट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट 4500 रुपए है, वीजा वी अगर हम इसको RT-PCR करते हैं, जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट इस समय 800 रुपए है। तो उसकी रैपिड अगर आपको चाहिए कि 6 घंटे में ही आंसर मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली CNBC का टेस्ट करा सकते हैं और उसमें जल्दी मालूम पड़ सकता है। तो आंसर इज, प्लीज टेक दी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक नेगेटिव नहीं हो जाओ तब तक यू कैन स्प्रेड दी वायरस, इवन इफ इट इज अ डेड वायरस इनसाइड यू। प्लीज मेक श्योर। कुछ लोग कहेंगे कि जो डेड वायरस होता है तो भी पॉजिटिव आ सकते हो। नो, माई थिंकिंग इज लाउड एंड क्लियर कि प्लीज बिकम नेगेटिव, देन यू विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ। फैंटास्टिक। एक सर क्वेश्चन आया है लैक्टिंग मदर्स का, या जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बच्चों को, क्या उनको भी सर वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, और दे शुड टेक सम मोर टाइम, या कुछ मंथ्स के बाद दे शुड गो फॉर दैट? अब फॉर एग्जांपल यस, अगर वैक्सीन लैक्टेटिंग मदर्स हैं कराना चाहिए इस, क्योंकि अभी 1 मई से जैसे ही शुरू होएगा तो 18 साल की एज के ऊपर ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। दे शुड डेफिनेटली गो इन फॉर वैक्सीनेशन, सो दैट अल्टीमेटली, और ये अभी तक स्टडी नहीं किया गया है या हुआ ही नहीं है क्योंकि इतने यंग लोगों को कम दिए गए पहले, तो हाँ, मगर डेफिनेटली दे शुड गो इन फॉर वैक्सीनेशन। ओके। एक सर हमारे मिस्टर कुणाल का एक क्वेश्चन है
कि सर अगर कोई नेगेटिव टेस्ट आने के बावजूद भी अगर सिम्टम्स कहीं किसी के दिखते हैं तो क्या वो टेस्ट रिपोर्ट पे रिलायबिलिटी होनी चाहिए या वी शुड गो विद द सिम्टम्स कि जो हमें लग रहे हैं, जो नॉर्मल हेडेक है, बॉडी एक है या नोजिया है या किसी के नोज वाटरिंग नोजेस है या जो भी ये नॉर्मल सिम्टम्स इसके कोविड के बताए जाते हैं, अगर वो सिम्टम्स हैं पर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो उस केस में सर हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। कुणाल थे? यस सर। हाँ, मिस्टर कुणाल को मैं ये कहूँगा कि वी हैव टू सी द होल ऑफ द पेशेंट रादर देन द होल ऑफ द पेशेंट। व्हाट आई मीन टू से कि हमें सिर्फ रिपोर्ट्स को नहीं ट्रीट करना है, हमें तो पेशेंट को ट्रीट करना है। अगर सिम्टोमेटिक हैं 70% चांसेस हैं कि आरटीपीसीआर हो सकता है नेगेटिव आए। अगर इन्फेक्शन है भी सही, अगर सिम्टम है भी सही, तो 70% में तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। 30% चांसेस हैं कि फिर भी नेगेटिव आ सकता है। 30%। तो इसके लिए अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, गो इन फॉर अनदर टेस्ट। इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द लैब। हो सकता है कि उस समय जब आपका नेजोफेरेंजियल स्वाब लिया गया या ओरल फेरेंजियल स्वाब लिया गया, उसमें वायरस लोड नहीं आया। वायरस लोड नहीं आया इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट हुआ। मगर नेक्स्ट अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली गो इन फॉर अनदर टेस्ट एंड दैट मे कम आउट टू बी पॉजिटिव। सर इट हैपेंड विद वन ऑफ माय एम्प्लॉइज। हमने उसका रैपिड टेस्ट कराया, वो उसका नेगेटिव आया, पर साथ साथ उसने ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। आरटीपीसीआर कराया तब तो 24 आवर्स में रिपोर्ट आ रही थी और वो उसका पॉजिटिव आ गया। तो आई वाज थिंकिंग कि हो सकता है कि लैब की मिस्टेक हो, बट नाउ इट इज आई बिलीव इट इज क्लियर कि व्हाइल टेकिंग द सैंपल आल्सो इट माइट बी अ प्रॉब्लम कि वो वायरस उसके नोज स्वैब में आया नहीं, क्योंकि रैपिड जो है वो नोज स्वैब से दिया जाता है। वन एंड आरटीपीसीआर जी हाँ, वन एंड सेकंड थिंग इज कि हर एक टेस्ट की अपनी अपनी एक स्पेसिफिसिटी होती है, एक सेंसिटिविटी, एक स्पेसिफिसिटी होती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की डेफिनेटली कम है एज कंपेयर टू आरटीपीसीआर। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ट्रीट द पेशेंट एज पॉजिटिव। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है देन वन हैज टू गो इन फॉर आरटीपीसीआर एंड देन प्रूव और डिसप्रूव कि पॉजिटिव है, इन्फेक्शन है पेशेंट को या नहीं है। I request all my participants, if they have got some more questions, we can continue the session. अभी सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास जो बार बार एक अलग अलग तरीके से लोग पूछ रहे हैं कि सर जो हमारा आइसोलेशन पीरियड, जैसे आपने बोला 14 डेज की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, और अगर एक मोर प्रिकॉशनरी होकर हमें चलना है या सो कॉल्ड लोग ऑफिस में जो काम करते हैं उनको परमिशन मिल जाती है लंबे आइसोलेशन के लिए, क्योंकि एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसके बाद शायद वो हॉलीडेज काउंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कीपिंग दैट थिंग आल्सो इन माइंड, कितना मिनिमम एक पीरियड होना चाहिए आइसोलेशन का फ्रॉम द डे वन यू आर डिटेक्टेड पॉजिटिव, और ये अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ भी जाती है तो 14 डेज से पहले भी आ जाती है, तो क्या मिनिमम 14 डेज आइसोलेशन जरूरी है या उसके बाद भी उसको अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहिए प्रिकॉशनरी 2-3 डेज अगर उसका प्रोफेशन परमिट करता है तो? नहीं, इसमें आई वुड अगेन से कि जो टेस्ट है वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो आइसोलेशन शुड फिनिश ऑफ। अगर नेगेटिव आ जाता है, अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो डेफिनेटली इट शुड फिनिश ऑफ। अगर पॉजिटिव फिर भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका और सिम्टम्स अब खत्म हो गए तो आइसोलेशन शुड कंटिन्यू, और 3 दिन के बाद फिर टेस्ट कराना चाहिए। अगर उसमें नेगेटिव आया तो फिर आइसोलेशन खत्म करना चाहिए। Anyone has any question we can ask, otherwise we can round off the session right now. हमारे And जो टीचर्स थे कौन अभी समय है ऑनलाइन? Sorry sir, जो हमारे टीचर्स थे कौन अभी समय एसोसिएटेड है अभी ऑनलाइन? I can see Mr. R.K. Sharma, राइट, yes, and I saw Mr. R.K. Sethi before. all right, good, Okay. nice. I always have regards for our teachers who have given so many Absolutely, values to us. And- मैं honestly I feel कि उन वैल्यूज की वजह से, और मैं स्पेशली एक और छोटा सा इंसिडेंस इसी में बता देता हूँ। मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर दीपक और दिनेश जानते हैं कि ऑल 3 ऑफ अस आर फ्रॉम हंसराज, राइट? तो जो मेरी सिस्टर की बेटी को MBBS में एडमिशन मिली, तो जब वो ज्वाइन करने गई तो फिर मैंने कहा एक पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव इट टू यू। कहती क्या? मैं कहा अच्छे इंसान बनना, अच्छे डॉक्टर तो बन ही जाओगे, और आपने अगर MBBS में एडमिशन ले ली है डॉक्टर तो बन ही जाओगे, पर इंसान अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो, सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, जो अच्छे इंसान नहीं बन पाए। तो हमारे, आई मस्ट थैंक माई स्कूल that they have, our school teachers, that they have given us so many values, क्योंकि इस समय
सब जानते हैं, हम सब के प्रोफेशंस में मार ताड़ झाड़ करके आगे निकलने की होड़ है, पर अगर हमारी वैल्यूज अच्छी हैं, अगर हमारी, तो डेफिनेटली अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होती है वो कहीं और सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। तो इसके लिए मेरे स्पेशली यंग बच्चे हंसराज मॉडल स्कूल के या कहीं के भी जो इस समय निकल रहे हैं, उनको हमें यह सिखाना है कि डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या सीए बनना इज नॉट योर टारगेट। योर टारगेट शुड बी एक अच्छा इंसान बनो, फुल स्टॉप। Thanks, Praveen. One question, which is with the new kind of virus, is it airborne? One question was there, is it airborne, and how much distance should be there now? And of course, we know that 2 gaz ki duri, but if, with a new thing, if something is there. I would again say uncertain. इट इज स्टिल अनसर्टेन कि अभी कल ही आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि जो वैक्सीन का के बारे में भी जो साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी लगने लग गया है हो सकता है कि ये वैक्सीन का इफेक्ट इतना ना आए क्योंकि म्यूटेटेड जीन्स आ जाएंगे, म्यूटेटेड वायरस आ जाएगा। तो अभी कुछ नहीं पता कि कितना म्यूटेशन हो रहा है, कितना, बट मुझे लगता है कि 2 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, 2 गज को कम नहीं करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजेशन करनी चाहिए, और जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाई, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई, बार बार हर चीज को हाथ वॉश करते रहो, अच्छी तरीके से साबुन को इस तरीके से लगाओ कि ये वेब्स भी अच्छी तरह से क्लीन हो। ये नहीं है कि सिर्फ 2 सेकंड के लिए वॉश किया, 30 सेकंड्स एटलीस्ट वॉश करो, दोनों सरफेसेस को करो, इस वेब्स को अच्छी तरह से वॉश करो, मेनी टाइम्स करो, तो डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है। तो अभी अनसर्टेनिटी पे चल रहा है। आई बिलीव सर आपके आंसर, आपके जो टॉक है, काफी लोगों के काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे, जो मिथ्स हैं हमारे को कोविड को लेकर, और स्पेशली जो ये एक अनसर्टेनिटी और एक जो फियर फैक्टर है सेकेंड वेव को लेकर, काफी सारी चीजें आज क्लियर हुई हैं। एंड आई बिलीव एक सेकेंड सेशन की हम जरूर उम्मीद करेंगे आपसे थोड़े दिनों में। एंड सम मोर एल्यूमनाइज ऑफ आवर स्कूल हु आर डॉक्टर हैव कॉन्टेक्टेड अस to have this kind of conference. So on this platform, may I request you to join them and to guide the junior doctors also of Hansraj to on this kind of platform, and they can again spread this kind of knowledge to everyone. तो सर अगर किसी के एक सर, sorry to ask again, one last question is coming. Please ask if anyone is showing symptoms, और अगर किसी symptoms जो हैं सेकेंड वेव के लिए भी सेम ही है जो फर्स्ट वेव के थे, या उसके अंदर कुछ अलग से सिम्टम है, क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन वायरल एंड दिस कोविड-19 सेकंड वेव, और क्या साथ साथ टेस्ट करा लेना चाहिए या इमीडिएटली हमें अपनी मेडिकेशन जो हमारे पास, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड गूगल से मिल रही हैं या व्हाट्सएप पे चल रही हैं, या डॉक्टर को दिखाकर ही या टेस्ट कराकर ही हमें जो ये फेविफ्लूइड जो आजकल चल रही हैं वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए, या कैसे वो, हाउ टू गो फर्दर? वंडरफुल, वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर इज लाउड एंड क्लियर कि हमें अपने आप को ट्रीट नहीं करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लेना चाहिए। अगर हमें, और सिम्टम्स वाइज, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फीवर आ रहा है, सोर थ्रोट है, लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, पर इस म्यूटेटेड वायरस की वजह से कुछ लोगों को पेन एब्डोमेन या लूज मोशंस भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मान लो इनिशिएशन ऑफ एनी सिम्टम इज देयर, आज जो पिछले साल इसी टाइम में डेफिनेटली डिफरेंस आ चुका है। आज टेस्ट इज ए मैंडेटरी, आई वुड पुट इट दिस वे कि जितनी जल्दी टेस्ट करा लेंगे उतना भ्रम दूर हो जाएगा कि हम पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। और अगर हम टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव भी आ जाते हैं तो पैनिक नहीं करना, बट वीडियो कंसल्टेशन कर लो डॉक्टर से। और अगर ये जरूरी नहीं है कि आइवरमेक्टिन भी ले लो और फेबिफ्लू भी ले लो और HCQ भी लेना शुरू कर दो और पैरास, सिर्फ अगर फीवर आता है 100 से ऊपर डेफिनेटली क्रोसिन या पैरासीटामोल या डोलो 650 ले। अगर मान लो सिम्टम्स इतने ही तक रिस्ट्रिक्टेड है, माइल्ड फॉर्म ही चल रही है, लेट इट कंटिन्यू। अगर बीच में डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर अगर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस, अगर फॉर्म में बढ़ता जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, फीवर बढ़ रहा है, तो जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि फेरिटिन लेवल है, IL-6 लेवल है या डी डाइमर है, तो ये टेस्ट करा के डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर मेडिकेशन लेना। स्टेरॉइड्स भी अननेसेसरी नहीं लेने।
अगर डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करता है कि स्टेरॉइड लेने चाहिए, गो हेड. अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं एंटीवायरल फेबिफ्लू वगैरह लेने हैं तो गो हेड. आइवरमेक्टिन लेनी है तो गो हेड. बट प्लीज डू नॉट सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ. इफ यू स्टार्ट सेल्फ ट्रीटिंग योर सेल्फ यू मे मेस अप द होल सिचुएशन. तो इसलिए बेटर है. और अगर मान लो सीवियर फॉर्म है, अगर आपको पहले से ही पता लग गया कि आपको ये तीनों चारों फीचर्स आ गए हैं मगर आपको साथ में डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, हार्ट डिजीज भी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो पहले दिन से ही टेस्ट करा के डॉक्टर से कंसल्ट सीरियसली रखो. अगर किसी समय पे भी जरूरत हो, ऑक्सीजन का इंटेक कम हो रहा है तो बढ़ाएं, और जब जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन भी करें. उसमें भी अल्टीमेटली ऑक्सीजन का ही रोल आ जाएगा. Okay, sir. Thank you very much for your valuable time. Now I invite Mr. Kunal Khanna, the secretary of our association, to give a formal vote of thanks from the entire fraternity. And sir, thank you very much for your suggestions, your guidance, and valuable information. Sir. Thank you. Thank you very much. Before Mr. Kunal, you can unmute yourself and you can please. Yeah, before Kunal says, I must thank Hansraj Model School Alumni Association from the core of my heart. I have learned so much and I always wish कि जितने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. स्टे पॉजिटिव. इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने, वो कहते हैं ना कि इस समय सर्वाइव कर जाओ, बहुत बड़ी बात है. Exactly, sir. Exactly. Thank you. Kunal, can you hear us? Kunal, can you join? Yes, Kunal. Yes. Thank you, Doc, for your fantastic, very simplified information you gave to us. It was really good, and I think all the guys who have really joined would have really enjoyed it, and would have really would have got into a very good sharing for them. And on behalf of our team, I would like to thank our participants who have been here and tried to join and take benefits of your webinar. And I'm sure from here you can really join, and would invite you for more webinars. Sure. I must thank Dinesh Chopra, Deepak Dharmara, all of you for inviting me. One. Second thing is that honestly Dinesh also told me in the morning कि सिर्फ इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है. तो मुझे लगा कि यस, अगर हार्ट से तो आवाज आनी है तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों इंग्लिश होनी चाहिए. तो उसके लिए आई मस्ट थैंक दिनेश चोपड़ा अगेन for giving me this opportunity to interact with you all. And as a family, as a HRMS family, we should all grow together. We should remain safe, and our parents and our children should remain safe. Let us work for the mankind rather than for any positions or anything. Please have trust in God, trust in yourself, and trust in others. We will overcome this. This too shall pass. Thanks a lot. God bless you all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Teachers also. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks.